जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। बीएसएनएल के सभी यूनियंस और एसोसिएशंस की तरफ से 3 रोजा हड़ताल रखी गई। आज हड़ताल के दूसरे दिन सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने बीएसएनएल में 4G स्पेक्ट्रम, रिवाइज पेंशन आदि की मांग की। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 1/1/2017 ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ 4G ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 4G ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਗਰ BSNL ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ DOT ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 98% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਆ। ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਏਅਰਟੈਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਸਾਡਾ 4G ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 4G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਆ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। जायज़ मांगों के चलते ड्राइवर और कर्मचारी यूनियन की तरफ से लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठने के विशेष निर्णय लिए गए। सभी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ड्राइवर्स का DC रेट पक्का किया जाए एवं जो लंबे समय से ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं उनको ऊंचे पद पर किया जाए। इसके अलावा उनकी मांग है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाए। क्योंकि बार-बार एक ही आप मीडिया करते हैं, कभी तालमेल जो लोग सानू बेवकूफ बनाता मीटिंग में मीटिंग कर करके रखते हैं मुद्दा बढ़ाई जाते हैं हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे राजा वेका आज म्यूनसिपल एम्प्लॉइज संघर्ष कमेटी के मेंबर से ड्राइवर यूनियन। मैं ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ 1994 ਤੋਂ 1998 ਤੋਂ DC ਰੇਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਰੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖੀ ਵਾਰਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਰੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 7 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ भी बंद करना पै सकता। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा लुधियाना के घंटाघर के नजदीक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें राहुल गांधी के पोस्टर पर सिद्धू जी उनके हाथों से दूध पिलाते नजर आए। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर सिद्धू और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ। अगर ऐसा नहीं करते शिवसेना पंजाब कांग्रेस के हर एक मुख्यालय का घिराव करेगी। बड़ा बड़ा सवाल है जिथे सारा देश प्रवाह हत्याकांड की निंदा कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष तक पंजाब के मुख्यमंत्री तक पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान पाक साफ दे रहा है, जनरल बाजवा को शाबाशी दे रहा है। बड़ी जड़ी गलत गल है। दूसरे पासे राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी चो बाहर ना कढ़ के ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੁਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। देश के नाल गद्दारी है। ਅੱਜ शिवसेना पंजाब इत्थे धरना ला रही है। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस मुख्यालय ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरा देश पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को लेकर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दे रहा है, या तो मोमबत्तियां जलाकर या मौन व्रत रखकर, वहीं अगर हम आपको इसकी दूसरी तस्वीर दिखाएं तो देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। आपको भी यही लगेगा कि तो वही बात हुई कि कुछ लोग इसे खुद को मशहूर होने का मौका समझते हैं, जो सिर्फ अखबार और टीवी की सुर्खियों में आने के लिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को अब देशद्रोही कहना ही सही होगा। लुधियाना के फाउंटेन चौक के नज़दीक हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह शहीदों को मोमबत्तियों से दी हुई श्रद्धांजलि नालियों में देश के तिरंगे के साथ नजर आ रही है। ये साफ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ एक दिखावा था कुछ लोगों के लिए, जो खुद सुर्खियों में आने के लिए उन शहीदों की श्रद्धांजलि के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सर देखो, है तो ये गलती है जी, ये इतना होना नहीं चाहिए हैगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ TRP ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਾਬ है, वेस्टेज है, सारा कुछ बेकार है। तो शहीदों का जो अपमान हमें देखने को मिला है, जो हमारे तिरंगे का अपमान हमें देखने को मिला है, वो लुधियाना के फवारा चौक में है। यहाँ पे कुछ लोगों ने कल श्रद्धांजलि दिया हमारे शहीदों को, हमारे तिरंगे को, लेकिन उसके बाद जो श्रद्धांजलि देने के बाद जो मटेरियल है, मैं कैमरामैन गोल्डी से कहना चाहूँगा वो दिखाएं। ये मोमबत्तियाँ देखिए, मोमबत्तियाँ वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। ये वो तख्तियाँ हैं जिस तख्तियों में एक
भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे पुलवामा के आतंकवादियों और शहीदों को दी जा रही है। लेकिन ये तख्तियाँ भी देखिए क्या हाल है। और तो और मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ ऐसी तख्तियाँ हैं जो गंद के पास, नाली के पास पड़ी हैं, जिसमें हमारा तिरंगा बना हुआ है। ये देखिए, ये एक तख्ती है जिसमें हमने लिखा हुआ है शहीदों को श्रद्धांजलि, और तिरंगा बनाया हुआ है, और बाद में वो देखिए नाली में पड़ी हुई है। कैमरामैन गोल्डी के साथ अरविंदर सराना, सिटी होम न्यूज़ के लिए। फिलहाल वक्त होती है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर रहेंगे कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। ब्रेक के बाद अब सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। संत रविदास एक समाज सुधारक, मानववादी चिंतक और महान कवि थे। उनकी रचनाओं में ईश्वर, गुरु, ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ प्रेम का संदेश देते हुए मानव की भलाई पर जोर देती है। उन्होंने वर्ण परंपरा एवं जाति व्यवस्था को चुनौती दी और एक ऐसे समाज का स्वप्न देखा जिसमें कोई ऊंच नीच न हो और जहां धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न हो, जहां मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं बल्कि उसके मानवीय गुण हो। यह विचार मातृभूमि सेवा मिशन संत रविदास पीठ, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र एवं हरियाणा साहित्य अकेडमी पंचकुला के संयुक्त तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास के 642वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सामाजिक समता के संदर्भ में संत शिरोमणि गुरु रविदास विषय पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर RC मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। हमारे बीच माननीय डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी, जो अध्यक्ष हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के हैं। सर, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। आप डॉक्टर दीपोहर तुम्हें पापम चल रहे। उसके बाद जो है SRM यूनिवर्सिटी में जो है आज विभागाध्यक्ष हैं, ये जो राई के पास जो है वो यूनिवर्सिटी है। और डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जो है वो सलाहकार हैं। और दूसरा हाँ, ये तो चलो एकेडमी। देखिए, रविदास जयंती जो आज हम लोग मना रहे हैं, बेसिकली जब भी हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, हम ये सीख लेते हैं कि वो महापुरुष समाज के लिए क्या दे के गया है। संत रविदास जी एक संत थे और उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए, लोगों में सद्भावना के लिए और समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने उपदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति में अपने मन की जो है बात को मानना चाहिए और मन के हिसाब से चलेगा तो हमेशा वो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ेगा। उनका एक बड़ा फेमस मुहावरा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन आपका चंगा है, खुश है, तो आपको गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कठौती में पानी है आपके, वही गंगा जल है। तो ऐसे जो संत हैं जिन्होंने समाज को जोड़ने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली बुराइयों के लिए, इन सब को दूर करने के लिए जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पे लगा दिया, हम उन महासंतों को याद करते हैं। उनकी जो है जन्मतिथि पे हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान को बताते हैं, जिससे हमारी नई पीढ़ी जो है उनको सीखे, उनको अपने जीवन में अनुसरण करे और हमारा समाज आगे जो है बढ़ता रहे। मातृभूमि सेवा मिशन जो है एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो पिछले काफ़ी समय से समाज के सुधार के लिए और विशेषकर जो गरीब बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रहने का, खाने का, पढ़ने का, किताबों का, और यहाँ तक कि जब तक कि वो खुद व्यवसाय पे नहीं खड़े हो जाते अपने पैरों पे, तब तक उसको सहारा देती है। मैं समझता हूँ इस तरह का कार्य बहुत कम संस्थाएं हैं जो कि बच्चे को उसके जीवन यापन में और यहाँ तक कि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता तब तक उसके लिए साथ देती हैं, और उसके बाद भी यदि उसको आवश्यकता होती है तो साथ देती है। तो मातृभूमि सेवा मिशन, जैसा कि उसका नाम है कि उसका एक मिशन ही है, उसका उद्देश्य ही है कि मातृभूमि की सेवा करना, मातृभूमि के जो है बच्चों की सेवा करना और उनको आगे बढ़ाना, समाज को खुशहाल करना और समाज में लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाना, समाज को जोड़ करके रखना। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 38 रविंद्र कॉलोनी शिमलापुरी में स्मार्ट कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके बारे में जानकारी दी युवा कांग्रेसी नेता नूरनी ने। उन्होंने बताया कि आज यहां जरूरतमंद लोगों के लिए यह कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को सरकार की सभी स्कीम का लाभ मिलेगा। रविंद्रा कॉलोनी गली नंबर 5 बाबा बालक नाथ जी के मंदिर के सामने जो धर्मशाला बनी है, अज वो असी स्मार्ट कार्ड जोड़े नीले कार्ड ने उन्होंने कैंप लगाया तो लोगों में काफ़ी उत्साह है जी। सारे लोग आके इसका फायदा चक रहे हैं
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਪੂਰੇ ਲਗਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਪ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਣ। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। जगरांव कबड्डी की तरफ से पिछले दिनों से ही कबड्डी कप शुरू किया गया था, जिसकी संपत्ति कल हुई। कबड्डी में जितने पहले खिलाड़ी थे उनको 50,000 का इनाम दिया गया और बाकी दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को मोटरसाइकिल देकर सम्मानित किया गया। इस कबड्डी कप को देखने के लिए लोग दूर दूर से गाँव और शहरों से आए हुए थे और पंजाबी NRI भी लोगों ने इस कबड्डी में बहुत ही सहयोग दिया। उसनों कबड्डी आखदे जो बड़िया साडी कबड्डी दी है सरदारी मुंडा लगदा हत्था जो देखो पर उधर खालसे भी अंग जो सारे ही वीरां दा धन्नवाद है और दोनों टीमां दा लो बची हुई मोटे पट नु खिच के बची जितनी है जट्टा तो चक लेंदे मोटिया पट्टा तो बेनती है वी कबड्डी कप तुहाडा अपना जितने भी दर्शक वीर जंगले तो अंदर आके कोटली खोल दूसरा देना साढ़े कबड्डी कप का ये 11वां कबड्डी कप आ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 61,000 ਰੁਪਈਆ, ਬੈਸਟ ਰੀਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 11ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ NRI ਵੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NRI ਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। जगरांव से राम चावला की रिपोर्ट। लुधियाना के द नवयू क्लब में द ब्लू बेल्ट के साथ द डाइट एक्सपर्ट्स के साथ एक कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। खाना पकाने के इस कंपटीशन में लुधियाना के शेफ फिश का स्वागत किया गया, जिन्होंने सेलिब्रिटीज शेफ हरपाल सिंह सोखी DA के फैसले के तहत अपनी कुकिंग कला का प्रदर्शन किया। जी सारे सत श्री अकाल जी, मेरा नाम शेफ हरपाल है तो अज इतने इसी दिन वो लुधियाना से कंपटीशन कराया है विद डाइट एक्सपर्ट्स सिमरत मैडम नाल, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। लगभग 25 कंटेस्टेंट्स आए। थीम जड़ा सी असी 2 चीज़ां दित्तियां सी, क्योंकि सिमरत मैडम डाइट काफ़ी प्रमोट करते थे। एक डिश डाइट वाली बनानी सी तो एक जी मैं जनरल बनाऊँगा सिनफुल फूड, वो एक डिश बनाई तो लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो सब तो मज़े वाली गल ये सी कि घट तो घट 4-5 मेल मैंबर सी, कुछ थे क्लास 10 से पढ़ रहे सी। तो सब तो उस तो भी वड्डी गल है कि एक छोटी जी बच्ची जिहड़ी मेरे ख्याल से 8-9 साल की होगी, आयशा, उन्हें भी पार्टिसिपेट किया और बहुत ही वधिया उन्होंने डिस्प्ले किया। तो सारे ने बहुत वधिया काम किया इत्थे। आई एम इक्शा सेठी, 9 years old. I am in a cookery competition. I'm really enjoying. I made a chocolate truffle cake, Oreo choco balls and Princess Summer salad. Myself Shireen. So today is cooking competition at the New York Club. So I have presented my dish. I have made choco Mary chia seed pudding and a healthy one is cucumber subs. So the specialty of cucumber subs is it's very nutritious and contains olives, tomatoes, lettuce. लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। अमृतसर के शास्त्री मार्केट क्लास डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शास्त्री मार्केट क्लास डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। के बाद पूरे देश में बहुत ज़्यादा एक दुख की लहर है। हमने अपने वीर जवान शहीदों को खोया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब इकट्ठे होकर
आज जल ज्योति दरबार में उनके नाम की दुआ मांग रहे हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी दुख तो बहुत है और ये दुख जिंदगी भूलने वाला तो है नहीं। बाकी प्रधानमंत्री जी से और देश की तमाम जो जनसंख्या है उन सबसे मेरी एक अपील है कि अगर हमें एक मौका मिले, हम हथियार लेकर सेना के साथ सीमा पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा दुख है हमें, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देंगे। एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को एक इशारा करते, हम अपने जवानों का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान तक देने को तैयार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक अपील और है मेरी क्या पूरे देश की है प्रधानमंत्री जी से कि जो जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को सिक्योरिटी दे रखी है, ये हटा लेनी चाहिए। हटा ली गई है। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उसने हमारे मन की इच्छा को सम्मान दिया है और जो देशद्रोही हैं उनकी सुरक्षा हटाकर एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को थोड़ी सी इज्जत बख्शी है, सम्मान बख्शा है। बाकी हम अपने जो देश के हमारे जवान, हमारे सपूत, हमारे भाई गए हैं, उनके लिए हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना के चौड़े बाजार में स्थित पिंक प्लाजा मार्केट के एसोसिएशंस ने आज कॉरपोरेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਮਝੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਟ ਰਖਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਟ ਰਖਾਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਕਟ ਰੱਖੀ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਟ ਦੇਖਣਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਕਟ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਪਿਕਟ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਵੀਲਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਦੱਸੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫੜੀ ਲੈਦਾ, 5 ਫੜੀਆਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1200 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਲੈ ਫੋੜੀ ਜੀ 1200 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 500 ਫੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਗੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर रहूंगा कुछ और धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए और बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।